ऊपर लगन का स्टॉप सी हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटा, आज अपना सेकंड लेक्चर है रिगार्डिंग द जनरल प्रोसेसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो बेटा इन द लास्ट लेक्चर वी हैव स्टार्टेड अबाउट द मैटलर्जी। तो आप बेटा मैटलर्जी प्रोसेस स्टार्ट की सी। उस दे विच आपां क्या सी कि मैटलर्जी बेसिकली इनवॉल्व्स 4 स्टेप्स। ठीक है, फर्स्ट वन वाज द क्रशिंग एंड grinding the ore, grinding of ore. Second one was the concentration of the ore, concentration of the ore. Third one was the extraction of metal, or we can say extraction of crude metal from the ore. And last one will be purification and refining of metal, purification and refining of metal. In the last lecture we have discussed about first 2 steps, crushing and grinding of ore, and second one was the concentration of ore. In today's lecture we will discuss about the third step, that is the extraction of crude metal from the ore. तो बेटा हुण इस स्टैप दे विच साडा मेन पर्पस की है कि जो असी ओर नूं कॉन्सनट्रेट कीता है उस दे विचों असी अपनी मैटल नूं अलग करना है। ठीक है, और बट जिहड़ी वो मैटल होएगी बेटा वो प्योर फॉर्म दे विच नहीं होएगी हले, इट कैन कंटेन सम इंप्योरिटीज। तो इसी करके इत्थे वर्ड यूज करते हैं आपां क्रूड मैटल। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मैटल फ्रॉम द ओर। तो हुण जिहड़ा थर्ड स्टैप है बेटा एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मैटल फ्रॉम द ओर, इहदे विच बेसिकली बेटा जो भी असी प्रोसैस यूज करना है वो डिपेंड करता है कि बेटा तुहाडे ओर दे विच किहड़ी मैटल है और उस दे विच किस टाइप दियां इंप्योरिटीज प्रेजेंट ने। ठीक है, मीन्स दिस स्टेप इन्वॉल्व्स द प्रोसेसेस बट दैट प्रोसेसेस will depend upon the nature of the metal as well as nature of impurities present in the ore. ठीक है, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਫॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मैटल फ्रॉम द ओर, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਮਿਲਰ ਨੇ ਬੇਟਾ। दिस process basically involves oxidation and reduction, oxidation and reduction process। ठीक है, हुण बेटा आप +1 ਦੇ ਵਿੱਚ पढ़िया है कि ऑक्सीडेशन की हुंदी है और रिडक्शन की हुंदी है। ऑक्सीडेशन ਨੂੰ ਅਸੀਂ इन जनरल डिफाइन करते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन ਨੂੰ ਅਸੀਂ डिफाइन करते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ बेटा कोई भी मैटल होवे, कोई भी इंप्योरिटी होवे ओर दे विच, हरेक किस्म दे ओर लई और हरेक किस्म दी मैटल लई ये 2 बेसिक प्रोसैसेस तां असी यूज करनियां ही करनियां ने फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मैटल फ्रॉम द ओर। और वो प्रोसैसेस किहड़ियां ने? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। मीन्स साडा फर्स्ट स्टेप की होएगा? conversion of concentrated ore to its oxide form। ठीक है, जेड़ा भी साडे कोल ओर है बेटा असी उसकी की करनी है ऑक्सीडेशन, मीन्स असी उसनू कन्वर्ट करना है उसके ऑक्साइड फॉर्म दे विच। एंड सेकेंड वन कन्वर्शन ऑफ ऑक्साइड ओर या ऑक्साइड मेटल टू मेटल फॉर्म।
ठीक है। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਓਰ ਹੈ ਉਹ ਆਕਸਾਈਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਰੂਡ ਮੈਟਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫॉर द ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੂਡ ਮੈਟਲ ਫਰੋਮ द ਓਰ, ठीक है। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਆਫ ਓਰ ਟੂ द ਆਕਸਾਈਡ ਫਾਰਮ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਲਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਐਂਡ ਰੋਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਕੈਲਸੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੋਸਟਿੰਗ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर द conversion of ore to the oxide form, to the oxide form, ठीक है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਆਕਸਾਈਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਰਦਰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਕੈਲਸੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੋਸਟਿੰਗ, ठीक है। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕੈਲਸੀਨੇਸ਼ਨ ਔਰ ਰੋਸਟਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਕੈਲਸੀਨੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਕੈਲਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ ਬੇਟਾ, ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਓਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਓਰ ਜਿਸ ਓਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ heating the process of heating the concentrated ore, the process of heating the concentrated ore strongly below its melting point in the absence of air, in the absence of air or in the limited supply of air, limited supply of air is known as calcination। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਓਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਹੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਹੀਟਿੰਗ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਸ ਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਨ ਦ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਏਅਰ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਿਮਟਿਡ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਏਅਰ ਨੂੰ यूज करना है, तो उस प्रोसैस को असीं कहने कैल्सीनेशन। एंड दिस इज कैरिड आउट यूजुअली फॉर द कार्बोनेटेड ओर्स और हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स, ठीक है। ये जी कैल्सीनेशन प्रोसैस है बेटे किहड़े ओर्स दी यूज़ की जाती है, जिस दे विच मैटल या तो अपने कार्बोनेट फॉर्म दे विच हुंदी है या हाइड्रेटेड ऑक्साइड दी फॉर्म दे विच हुंदी है। असी बेटा दी एग्जाम्पल करांगे तो इसका मीनिंग क्लीयर हो जाएगा कि कार्बोनेटेड ओर किहड़ा हुंदा है, हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स किहड़े हुंदे ने। हुण देखो बेटा जदों भी किसी ओर नूं हीट किया जाता है तो उस हीटिंग दे नाल उस दे नाल सानूं की फायदा हुंदा है, ठीक है। जब तो उसके जोड़े बेनीफिशियल स्टैप्स ने वो किहड़े ने, एक तो की होएगा बेटा उसदे विचों जिन्ना भी मॉइस्चर होएगा मॉइस्चर विल बी रिमूव्ड, ठीक है। जब तुम उसको स्ट्रोंगली हीट करोगे उसदे विचों मॉइस्चर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। वॉलेटाइल इंप्योरिटीज विल बी रिमूव्ड, ठीक है। जिहड़ियां इंप्योरिटीज बेटा उसदे विचों वेपराइज हो सकदियां होणगियां ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਰਿਮੂਵ, ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਵਿਲ ਬੀ ਰਿਮੂਵਡ। थर्ड वन ओर बिकम पोरस, ਜਿਹੜਾ ओर है बेटा वो पोरस हो जाएगा जिस दे नाल उसकी फर्दर जो प्रोसैसिंग है वो ईजी हो जाती है। एंड लास्ट वन इज कार्बोनेटेड ओर्स आर converted into
ऑक्साइड फॉर्म। तो बेटा अपने सारे परपज़ ये सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि देखो बेटा असी की किया है कि जी असी करनी है एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मैटल फ्रॉम द ओर, वो फस्ट स्टैप ही की है कि असी अपनी ओर नू अल्टीमेटली किहड़ी फॉर्म दे विच कन्वर्ट करना है, ऑक्साइड फॉर्म दे विच। ठीक है, तो जो असी कैल्सीनेशन प्रोसैस यूज़ करते हैं, जिहड़ा भी ओर दे विच फालतू वाटर है वो रिमूव हो जाएगा, उस दे विच जिहड़ियां इंप्योरिटीज़ अपनी वेपर फॉर्म दे विच कन्वर्ट हो सकदियां ने वो रिमूव हो जाणगियां। और है जिहड़ा तुहाडा वो पोरस हो जाएगा, जिस दे नाल उसके उपर काम करना सौखा हो जाएगा। और लास्ट वन की है कि जिहड़ियां उस दे विच जिहड़ियां कार्बोनेटेड फॉर्म वाले ओर ने वो भी अपनी किस फॉर्म दे विच कन्वर्ट हो जाएंगे, कार्बोनेटेड और एज वेल एज हाइड्रेटेड ऑक्साइड, दोनों ही लिख लेंगे आपां, एंड हाइड्रेटेड ऑक्साइड दोनों ही जिहड़े ओर्स ने वो किस फॉर्म दे विच कन्वर्ट हो जाएंगे, इनटू द ऑक्साइड फॉर्म। ठीक है, हुण असीं इसनूं एक एग्जाम्पल दे नाल समझदे हां। मान लो कि बेटे तुहाडे कोल ओर है जिंक कार्बोनेट दा। ठीक है, कार्बोनेटेड ओर दी एग्जाम्पल आ गई, कार्बोनेटेड ओर। ठीक है, असीं इसनूं हीट करना है स्ट्रोंगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर और इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। तो बेटा ये कन्वर्ट हो जाएगा जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सिमिलरली अगर तुहाडे कोल कोई कैल्शियम दा ओर है बेटा, उसनूं भी जो तुसीं स्ट्रोंगली हीट करोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो सीगी बेटा एग्जाम्पल तुहाडी कार्बोनेटेड ओर्स की, कि जदों भी कार्बोनेटेड ओर्स नूं असीं हीट करांगे स्ट्रोंगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर और इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, तो और किहदे विच कन्वर्ट हो रहे ने, अपनियां अपनियां ऑक्साइड फॉर्म दे विच। सैकेंड असीं क्या सी कि कैल्सीनेशन प्रोसैस इज यूज्ड फॉर द हाइड्रेटेड ऑक्साइड। इस तरीके नाल बेटा जिहड़ा एलूमीनियम दा ओर है, सब तो इंपॉर्टेंट ओर है एलूमीनियम दा बॉक्साइट और बॉक्साइट ओर। ठीक है, तो बेटा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो एलूमीनियम ऑक्साइड बट नाल उसके की है वाटर एसोसीएटेड है, तो इसनों क्या जाता है हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स। ठीक है, हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स। तो जो इसकी भी कैल्सीनेशन की जाती है तो ये भी जो वाटर है वो बेटा की है अलग हो जाता है। ठीक है, तो देखो सारे ओर्स है जिहड़े वो अपनी किस फॉर्म दे विच कन्वर्ट हो चुके हैं, इनटू देयर रिस्पैक्टिव ऑक्साइड फॉर्म्स। ठीक है, तो यह फर्स्ट वे सीगा बेटा टू कन्वर्ट द कंसनट्रेटेड ओर टू इट्स ऑक्साइड फॉर्म। ठीक है, सैकेंड जो जिहड़ी असी प्रोसैस यूज करते हैं बेटा दैट इज रोस्टिंग। हुण रोस्टिंग दे विच भी बेटा साडा जो मेन परपज़ है वो तो वही है कि असी ओर नूं कन्वर्ट करना है इनटू इट्स ऑक्साइड फॉर्म। बट इहदा कैल्सीनेशन नालों मेन डिफरेंस की है, रोस्टिंग नूं असी किवें डिफाइन करते हैं, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द concentrated ore strongly below the melting point of metal in the excess supply of air। excess supply of air, that is the main difference। ठीक है, कैल्सीनेशन विच असी वर्ड यूज किते सी इन द एब्सेंस ऑफ एयर और इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, बट ये विच असी वर्ड यूज कर रहे हैं कि जिहड़ा असी ओर है उसनूं हीट करना है इन द एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर। ठीक है, और जिहड़ी रोस्टिंग प्रोसेस है इट इज यूजुअली कैरिड आउट फॉर द सल्फाइड ओर्स। तो बेटा हुण सुनो जिहड़ी चीज़ मैं तुहानूं कह रही सी कि ये क्वेश्चन तुहाडे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आंदा हुंदा है, राइट डाउन एनी टू डिफरेंसिस बिटवीन द कैल्सीनेशन एंड रोस्टिंग। तो फर्स्ट डिफरेंस तो बेटा तुसीं डेफिनेशन दा बना देना है कि कैल्सीनेशन दे विच जिहड़ा ओर है उसनूं हीट किया जाता है आइदर इन द एब्सेंस ऑफ एयर और इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर।
और रोस्टिंग दे विच असीं मैंशन करांगे ओर इज हीटिड इन द एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर। ये फर्स्ट डिफरेंस बन जाएगा। सैकेंड वन डिफरेंस तुसीं किहड़ा बनाना है बेटा, इन द कैल्सीनेशन प्रोसेस द ओर्स यूज्ड आर मेनली कार्बोनेटेड ओर्स और द हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स, बट इन रोस्टिंग वी यूज द सल्फाइड ओर्स। ठीक है, सल्फाइड ओर्स का मतलब होंदा है जो मैटल बेटा सल्फर दे नाल कंबाइंड फॉर्म दे विच सानू मिलती है। तो इसकी एग्जाम्पल लेने बेटा, मान लो कि तुहाडे कोल है लैड सल्फाइड। ठीक है, जदों असी उसनू एक्सैस सप्लाई ऑफ एयर दे विच हीट करांगे, मीनस असी उसनू सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन दवांगे, तो तुहाडे कोल की बन जाएगा बेटा, लैड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। लैड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, और ये जी सल्फर डाइऑक्साइड है असी इसनू फरदर यूज कर सकते हैं बेटा फॉर द प्रैपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, या बेटा जिदा अपने को जिंक सल्फाइड है, जदों असी उसनू ऑक्सीजन नाल हीट करांगे तो एक ही बन जाएगा जिंक प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये सीगी बेटा कन्वर्शन ऑफ द सल्फाइड ओर्स टू द मैटल फॉर्म। ठीक है, बट बेटा ये अगर असी देखते हैं तो ये दो चांसिस ने, या तो जो थोड़ा ओर है वह सीधा मैटल के कन्वर्ट हो जाएगा, बट आप कह रहे हैं कि इस प्रोसैस को असी यूज करना फॉर द कन्वर्शन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड फॉर्म। तो इस करके असी प्रैफर करांगे इस इक्वेशन को इन द ऑक्साइड फॉर्म के लिखन की। ठीक है, तो इस दे लई असी इसनों जो बैलेंस करांगे इट विल बी 3, अगर आप इसनों बैलेंस करते हैं 2 2 2, नाउ इट इज़ इन बैलेंस्ड फॉर्म, 2 लेड 2 सल्फर। हाँ जी ठीक है बेटा, सिमिलरली हेयर। ठीक है, तो इस दे नाल साडे कोल की हो गया बेटा, जिहड़े सल्फाइड ओर्स ने वो भी किस दे विच कन्वर्ट हो रहे ने इनटू देयर ऑक्साइड फॉर्म्स। ठीक है, तो ये सीगा बेटा कैल्सीनेशन एंड रोस्टिंग प्रोसैस जिहड़ी कि यूज़ की जाती है फॉर द कन्वर्जन ऑफ कंसनट्रेटेड ओर टू द ऑक्साइड फॉर्म। और ये जिहड़ियां दोनों प्रोसैसेस ने बेटा, कैल्सीनेशन एंड रोस्टिंग, कैल्सीनेशन एंड रोस्टिंग इज कैरिड आउट in a furnace known as reverberatory furnace, जिन्हों असी पट्ठी कह दें बेटा पंजाबी दे विच। ठीक है, तो जी इसलिए फरनेस यूज की जाती है उन्होंने की किया जाता है रेवरबरेटरी फरनेस। तो बेटा ये की होंगे, ये रूफ के उपर वेंट्स होंगे ने, एयर होल्स होंगे ने। ठीक है, वो होल्स की हैल्प के नाल बेटा असी ये सप्लाई ऑफ एयर नू कंट्रोल कर सकते हैं। अगर तो असी कैल्सीनेशन करनी है तो बेटा उन्होंने होल्स नू, उन्होंने वेंट्स नू असी क्लोज रखते हैं। अगर रोस्टिंग करनी है तो जी बेटे उन्होंने वेंट्स है या जो उन्होंने होल्स है वो खोल दिते जाते हैं, ओपन फॉर्म के यूज़ किए जाते हैं। और इस फरनेस की हैल्प के नाल किसी भी ओर नू उसकी ऑक्साइड फॉर्म के कन्वर्ट किया जाता है यूजिंग कैल्सीनेशन एंड रोस्टिंग प्रोसैस। ठीक है, उस तो बाद बेटा जो अपना सैकेंड प्रोसैस है, सैकेंड स्टैप है अंडर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैटल, वो की है कि जो साडा हुण ऑक्साइड फॉर्म के सानू ओर मिल चुका है। ठीक है, असी इस दे विचों ऑक्सीजन नू रिमूव करना है ताकि सानू की मिल सके अपनी मैटल। और वो जी मैटल है उस मैटल को असी की कहते हैं क्रूड मैटल। क्रूड मैटल का मतलब होंगे कि हाले भी वो कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज के होने के चांसिस होंगे ने। ठीक है, बट जिहड़ा सैकेंड स्टैप है बेटा कन्वर्जन ऑफ द ऑक्साइड फॉर्म टू द मैटल, उस तो पहला असी एक होर चीज़ जी यूज़ करते हैं दैट इज़ फ्लक्स। ठीक है, तो बेटा फ्लक्स की डेफिनेशन है जी, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम कि फ्लक्स है की चीज़। ठीक है, फ्लक्स की है, इट इज़ अ केमिकल सब्सटेंस, इट इज़ अ chemical substance which is usually added to the oxide ore and it combines with gangue particles.
it combines with gang particles to form easily removable material known as slag। तो बेटा इत्थों भी तुहाडे कोल बोर्ड एग्जाम लई दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, डिफाइन फ्लक्स एंड डिफाइन स्लैग। तो बेटा देखो इन्हां दोनों दे विच डिफरेंस की है, फ्लक्स की है बेटा। देखो जिहड़ा असी इत्थे ऑक्साइड फॉर्म दे विच ओर कन्वर्ट किया है, कहंदे ये जिहड़ा ओर है इस दे विच भी कुछ इंप्योरिटीज प्रेजेंट हुंदियां ने। ठीक है, इंप्योरिटीज का मतलब उसदे विच की प्रेजेंट हुंदे ने, कुछ ना कुछ गैंग पार्टिकल्स। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੈਂਗ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਸਬਸਟੈਂਸ। ਉਸ ਕੈਮੀਕਲ ਸਬਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਲਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲਕਸ ਹੈ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲਕਸ ਹੈ ਉਹ ਗੈਂਗ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਉਹਦੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ। और इन्हां दी रिएक्शन तो बाद जिहड़ी एक नवी चीज़ बनती है बेटा उसनूं असीं की कहने आ स्लैग। और ये जिहड़ी स्लैग है बेटा ये जिहड़ी की हुंदी है लाइटर दैन द गिवन मैटल। लाइट होने दे करके बेटा ये ऊपर की करती है, फ्लोट, और इसनूं ईजीली की किया जा सकता है, रिमूव। कहने का मतलब ऑक्साइड ओर दे विच ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਹਲੇ ਵੀ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਸਬਸਟੈਂਸ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ बेटा उसनूं ਅਸੀਂ कहना है फ्लक्स। और ਉਹ फ्लक्स ਉਹਨਾਂ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਲੈਗ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ बेटा ਇਹ फ्लक्स है, फ्लक्स यूज्ड for this process is of two types, is of two types। ठीक है, जिहड़ा आपां फ्लक्स यूज करते हैं बेटा वो दो तरह के हुंदे ने, किहड़े किहड़े, एसिडिक फ्लक्स एंड सेकेंड वन इज बेसिक फ्लक्स। एसिडिक फ्लक्स एंड बेसिक फ्लक्स। हुण बेटा एसिडिक फ्लक्स अगर तो जिहड़ियां इंप्योरिटीज ने वो बेसिक नेचर दी हैं, ठीक है, फॉर बेसिक गैंग पार्टिकल्स। ठीक है, जिहड़ियां उहदे विच इंप्योरिटीज ने अगर उन्हां दी नेचर बेसिक है तो असीं जिहड़ा फ्लक्स यूज करांगे उहदी नेचर होनी चाहिए है एसिडिक। और अगर तुहाडीआं जिहड़ियां इंप्योरिटीज ने वो एसिडिक नेचर दियां ने, ठीक है, एसिडिक गैंग पार्टिकल्स है तो उहदे लई तुसीं फ्लक्स किहड़ा यूज करना है, बेसिक फ्लक्स। ठीक है, मान लो जिहड़े असीं ओर कन्वर्ट कीते हैं बेटा उहदे विच जिहड़ी सब तो ज़्यादा कॉमन इंप्योरिटी प्रेजेंट हुंदी है, ठीक है, एसिडिक नेचर दी, वो की हुंदी है, सिलिका, SiO2। ठीक है, इहदी नेचर किहड़ी है बेटा, ये है एसिडिक गैंग पार्टिकल। ठीक है, एसिडिक गैंग पार्टिकल। तो असी ये जिहड़ा फ्लक्स ऐड करना वो किहड़ा चाहिए, बेसिक नेचर का, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये साडा हुण किहड़ा फ्लक्स है बेटा, बेसिक फ्लक्स। तो ये की करदा है, ये इस दे नाल मिल के की बना दिंदा है, कैल्शियम सिलिकेट। तो जिहड़ा आ मटीरियल बनिया बेटा इसनूं असी कहने आ स्लैग। और इस स्लैग नूं रिमूव करना बहुत ईजी हुंदा है। ठीक है, सिमिलरली असी होर किहड़ा फ्लक्स यूज करते हैं, बेसिक, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये भी की करता है बेटा इसने नाल मिलके की बना लेंदा है, कैल्शियम सिलिकेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम सिलिकेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और इहदे विच भी जिहड़ा ये चीज़ बन रही है इसनूं असी की कह दिंदे आ, स्लैग, एंड इट कैन बी ईजीली रिमूव्ड। क्लीयर, ये तो सीगा बेटा बेसिक फ्लक्स। अगर तुहाडे जिहड़े इंप्योरिटीज ने वो किहड़ी नेचर दियां ने, एसिडिक नेचर दियां। अगर उल्टा होवे बेटा जिहड़ियां तुहाडीआं इंप्योरिटीज ने वो बेसिक नेचर दियां ने तो फिर असी की करना है बेटा, असी फ्लक्स किहड़ा यूज करना है, एसिडिक फ्लक्स। मान लो कि साडे कोल इंप्योरिटी किहड़ी है, बेसिक नेचर दी,
तो फिर असी उस दे विच फ्लक्स किहड़ा यूज़ कर लांगे एसिडिक फ्लक्स। तो ये हो गया एसिडिक फ्लक्स। बेटा उही रिएक्शन है, बस सिर्फ मैं घुमा के लिखी है। एक ही है तुहाडियां बेसिक गैंग पार्टिकल्स, बेसिक गैंग पार्टिकल्स। तो बनना तो बेटा हुण भी उही है, कैल्शियम सिलिकेट, और इसनूं असी की कहांगे स्लैग। ठीक है, तो ये सीगा बेटा पर्पज ऑफ एडिंग द फ्लक्स टू द ऑक्साइड ओर। ठीक है, तो असी फ्लक्स की हेल्प नाल की कर लिया बेटा, एक ईजीली रिमूवेबल मटीरियल बना लिया जिसनों असी की कहने आ स्लैग। और इस स्लैग नूं ओर दे विचों रिमूव करना की हुंदा, बहुत ईजी प्रोसैस हुंदा। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट स्टैप कंप्लीट होया बेटा, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मैटल फ्रॉम द कंसनट्रेटेड ओर दा। असी सिर्फ हले फर्स्ट स्टैप कंप्लीट किया है, कन्वर्जन ऑफ कंसनट्रेटेड ओर टू द ऑक्साइड फॉर्म। हुण असी सैकेंड अपना स्टैप फॉलो करना है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मैटल या एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मैटल। ठीक है, जिस दे लिए असी केड़ा प्रोसेस यूज करना है बेटा, रिडक्शन फ्रॉम द ऑक्साइड ओर। क्योंकि हुण जिहड़े असी ओर है बेटे, असी उन्हां नूं किस दे विच कन्वर्ट कर चुके हैं, इनटू देयर ऑक्साइड फॉर्म। ठीक है, तो उस ऑक्साइड ओर तो असी अपनी मैटल एक्सट्रैक्ट करनी है। ठीक है, तो इस दे लई भी असी की करना है बेटा, जिहड़ा साडा ऑक्साइड ओर है उसनों हीट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो उस प्रोसैस नूं की किया जाता है, पायरोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी। तो हुण असी इसनूं की लिखांगे, द प्रोसैस ऑफ हीटिंग द process of heating the oxide ore in the presence of suitable reducing agent to get crude metal is known as pyrometallurgy। ठीक है, जदों असी अपने ऑक्साइड ओर नूं, ठीक है बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट हीट करते हैं ताकि सानू उहदे विचों की मिल सके, अपनी मैटल। ठीक है, तो उस प्रोसैस नूं की किया जाता है, पायरोमेटलर्जी। क्लीयर। हुण बेटा ये जिहड़ा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, यह सारियां मैटल्स दे लई सेम नहीं हुंदा। ठीक है, असी किस रिड्यूसिंग एजेंट नूं यूज़ करके किहड़ी मैटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है अपॉन द नेचर ऑफ द मैटल एज वेल एज इंप्योरिटीज स्टिल प्रेजेंट इन द ओर। ठीक है, तो इस करके बेटा अलग अलग मैटल्स दे लई अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो बेटा असी 2-3 कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट डिस्कस करांगे जिहड़े जिहड़े असी यूज़ करते हैं। ठीक है, बट बेटा जिहड़ा मर्जी रिड्यूसिंग एजेंट तुसी यूज़ करना है, जिहड़ी हीटिंग है वो की है, नसैसरी स्टैप है। ठीक है, असी हरेक ऑक्साइड ओर नूं हीट तां करना ही करना है। ठीक है, कई मैटल्स ने बेटा जिहड़ियां ईजीली रिड्यूस हो सकदियां ने, उहदे लई सानू लो टैंपरेचर की जरूरत पैंदी है, और कुछ मैटल्स इदां दियां हुंदियां ने बेटा जिन्हां नूं एक्सट्रैक्ट करन लई उहनां दे ऑक्साइड ओर्स नूं काफ़ी हाई टैंपरेचर ते हीट करना पैंदा है। ठीक है, तो मतलब हीटिंग इज़ अ नेसेसरी स्टैप, but the temperature depends upon the nature of the metal present in the oxide ore। ठीक है, तो हुण असी केड़े केड़े रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट्स which are used for the various metals are
वो किहड़े-किहड़े हो सकते हैं बेटा? फर्स्ट वन जिहड़ा रिड्यूसिंग एजेंट असी यूज़ करते हैं कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये बेटा असी यूज़ करते हैं किहड़ियां मैटल्स लिए? कॉपर, लेड, जिंक, टिन एटसैक्ट्रा। ठीक है, अगर ये वाली मैटल्स एक्सट्रैक्ट करना है तो उन्होंने जी रिडक्शन है वो यूजली कैरी आउट की जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, सैकेंड असी यूज़ कर सकते हैं बेटा सोडियम और मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन। ठीक है, इन्ह चारा मैटल्स जो कोई भी मैटल यूज़ कर सकते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन। और ये की जाती है बेटा यूजली फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैंगनीज, क्रोमियम, टाइटेनियम, मॉलिब्डेनम एटसैक्ट्रा। ठीक है, थर्ड असी यूज़ कर सकते हैं वाटर गैस। वाटर गैस का मतलब होता है बेटा हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इनू की कहा जाता है? वाटर गैस, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये यूज़ की जाती है यूजली फॉर द निकल मैटल। ठीक है, निकल मैटल द आ मोस्ट कॉमन यूज रिड्यूसिंग एजेंट्स ने बेटा जिहड़े कि यूज़ किए जाते हैं फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ डिफरेंट क्रूड मैटल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड ओर्स। ये तो सब तो ज़्यादा जो कॉमन है बेटा वो यही है कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि बेटा ये ईजीली रिड्यूस हो कर दिंदा है मैटल को। ठीक है, अपने आप को ये ऑक्सीडाइज कर लेंदा है और ये मैटल को एक्सट्रैक्ट करना की है काफ़ी ईजी होता है। ठीक है, हाँ जी बेटा असी गल कर रहे सी कि असी हुण की करनी है? रिडक्शन करनी है। ठीक है, रिडक्शन लिए असी अलग अलग तरह के रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं और वो रिड्यूसिंग एजेंट्स यूजली असी किहड़े यूज़ करते हैं बेटा? आइदर कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड और सम एक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, पोटाशियम, एल्यूमिनियम और वाटर गैस मीन्स प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इन कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये जिहड़ी चीज़ां ने ये ज़्यादातर यूज़ कीतियां जांदियां फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैटल फ्रॉम दी ऑक्साइड ओर्स। द फर्स्ट है बेटा जिहड़ी वो की है? इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बेटा मैं तुहानूं कहा सी कि प्रोसैस जिहड़ी यूजली यूज़ की जाती है फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ लेड, जिंक, टिन मैटल एटसैक्ट्रा। ठीक है, हुण मान लो कि बेटा साडे कोल कोई और है जिस दे विच है जिंक ऑक्साइड। जदों असी उसनूं कार्बन की प्रेजेंस दे विच रिड्यूस करते हैं तो बेटा साडे कोल की बन जाता है? जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। सिमिलरली अगर साडे कोल है लेड ऑक्साइड तो अगर उसनूं असी कार्बन की प्रेजेंस रिड्यूस करते हैं तो की बन जाएगा? लेड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखो बेटा मैटल तो ऑक्सीजन अलग हो रही है, इस करके असी इसनूं की कहते हैं? रिडक्शन प्रोसैस। ठीक है, ऑक्साइड ओर है जिहड़ा वो किस दे विच कन्वर्ट हो गया? अपनी मैटल दे विच। ठीक है, अपने कोल ऑक्साइड ओर तो असी की अलग कर ली? मैटल। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, सैकेंड असी क्या सी कि असी इन्हां प्रोसैसिस नूं कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सम एक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, पोटाशियम, एल्यूमिनियम एटसैक्ट्रा। तो वो असी कीता सी बेटा फॉर द क्रोमियम एंड मैंगनीज। असी इसकी एक एग्जाम्पल कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमीनियम। ठीक है, जो असी एल्यूमीनियम मैटल नूं यूज़ कर सकते हैं फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रोमियम मैटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड ओर। ठीक है, तो जो इस प्रोसैस नूं कीता जांदा बेटा तो सानू बहुत ज़्यादा टैंपरेचर की जरूरत पैंदी है और ये रिएक्शन की हुंदी है? हाईली एक्सोथर्मिक। तो ये विचों भी सानू की मिल जाता है? क्रोमियम मैटल प्लस एल्यूमीना। ठीक है, तो ये नाल भी साडे कोल की होगी बेटा? जिहड़ी मैटल है वो रिड्यूस होके जिहड़ा मैटल ऑक्साइड है वो रिड्यूस होके किस दे विच कन्वर्ट हो गया? मैटल दे विच। ठीक है, तो इसनूं भी असी यूज़ कर सकते हैं या असी कर सकते हैं बेटा हाइड्रोजन नूं यूज़ इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड।
और वो जिहड़ा प्रोसैस है बेटा वो यूजली यूज किया जाता फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ निकल मैटल, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, मान लो कि साडे कोल निकल दी ऑक्साइड है, कोई निकल ऑक्साइड, जदों असीं उसनूं हाइड्रोजन दे नाल रिएक्ट करवाने तो साडे कोल की बनदा है निकल प्लस वाटर। तो इत्थे भी जिहड़ी निकल ऑक्साइड है बेटा उन्हें अपने आप को रिड्यूस कर लिया टू द निकल। ठीक है, तो इन्हां बेटा डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स नूं यूज करते हुए असी अल्टीमेटली कित्थे पहुंच चुके हैं, अपनी मैटल ते। ठीक है, थैंक यू बेटा।